مسائل کے دلدل میں مزید دنسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موریسی سیاست کے سیاسی بقا خطرے میں ہیں۔ اب اپنے سیاسی ساکھ بچانے اور اپنی کرپشن کا پیسہ چھپانے کے لیے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم میں دراڑیں تو مار سکتے ہیں لیکن پاور گیم سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ نان ایشوز کو ایشو بنا کر کے اس پر اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھی دوستو، پی ڈی ایم کے جلسوں میں مسلسل منظم منصوبہ بندی کے تحت ملک کے سلامتی و یکجہتی کے خلاف پلاننگ ہیں۔ اقوام کو غداری اور بغیرت کے طعنے دینے سے لسانی اور نسلی تفریق کو ابارا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں قومیت و لسانیت کی عصبیت ملک و قوم کی وحدت و یکجہتی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ محمود خان اچکزئی لاہوریوں کو تو طعنے دے رہے ہیں، کیا وہ بھول چکے ہیں کہ جب روس نے افغانستان پہ یلغار کی تو ان قوم پرست جماعتوں نے روس کا ساتھ دے کر 20 لاکھ پشتونوں کے خون بہائے گئے، اور پھر امریکہ بشمول نیٹو افغانستان پر یلغار کی تو ان جماعتوں نے امریکہ کو نہ صرف ویلکم کہا بلکہ پاٹھا اور بلوچستان میں ڈرون حملوں کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا اور صرف ڈالروں کی خاطر لاکھوں پختونوں کے خون کا سودا کی۔ اس سے پہلے محمود خان اچکزئی نے کوئٹہ میں بھی نواز شریف کا ساتھ نہ دینے پر اقوام کو بغیرت کہا، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی خٹک، مروت، بنوچی اور بیٹنی قوموں کو بغیرت کہا۔ اقتدار کے حرص و ہوس میں پی ڈی ایم کی قیادت ذہنی تناؤ سے گالی کی سیاست پر اتر آئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پی ڈی ایم کی سٹیج پر قیادت ماضی قریب میں ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کے ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو گھسیٹنے والوں کا غیر فطری اتحاد اپنی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ہیں۔ عوام اب اپنی ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہونے والے چہروں کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اقتدار کے حصول کے لیے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر کے گالیاں دینے پر اتر آیا ہے۔ خٹک، مروت، بنوچی اور بیٹنی، ان قوموں کو بغیرت کہنے کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ گالی سے سیاست کو پرشدت کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے عیان ہو چکی ہے۔ اپنی جماعتوں میں جمہوریت کا جنازہ نکال چکے ہیں اور اپنی جماعتوں کو یرغمال بنا چکے ہیں۔ محترم ساتھی حضرات، جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے آئین اور جمہوریت کی دہجیاں اڑا دیے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کی سیاست، محاذ آرائی کی سیاست اور جمہوریت کے لیے نقصان پہنچانے کا موجب بن رہے ہیں۔ اپنی ذاتی مفادات کے لیے قوم کو اکسایا جا رہا ہے۔ اب ان کا فلسفہ اور نظریہ اقتدار کے حرص و ہوس اور ذاتی مفادات کا حصول ہے۔ قوم کو صرف جھوٹ اور دل فریب نعروں سے ورغلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھی دوستو، بار بار باریاں لینے والے 31 سال اقتدار میں رہیں لیکن کرپشن کے علاوہ قوم و ملک کے مسائل حل نہیں کیے۔ نواز شریف اور زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو این آر او لینے کی وکیل بنا دیا ہے۔ ان کی سیاست اصولی نہیں، وصولی بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اتحاد بننے میں پانی کا بلبلہ رہا ہے۔ ایک دن اتحاد بنا رہے ہیں، دوسرے دن توڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ جماعتوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان جماعتوں نے کل تک ایک دوسرے کو قتل اور ایک دوسرے پر الزامات تنقید کرنے والوں کا راستہ جلسوں سے لے کر کے پارلیمان تک اپنے رکھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جہازوں سے تصویریں پھینکا جا رہا تھا۔ پشتونوں کو پنجاب اور بلوچ سے لڑایا جا رہا تھا اور ایک دو سے دفاع میں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ماں نے ان کو جنا ہے۔ میرے ساتھی حضرات، استعفوں پر بار بار موقف تبدیل کرنے سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے پر واضح طور پر تقسیم اور اختلافات کا شکار ہیں کہ اپوزیشن استعفیٰ دینے میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، جلد یو ٹرن لیں گے۔ یہ لوگ یو ٹرن لینے کے عادی ہیں۔ ان کا کام
ये बन चुका है कि दिल फरेब के नारों से अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाना, वोट लेना, अपने कारोबार चलाना है, आवाम को इश्तियाल दिलाना, किसी तौर पे जमहूरियत की खिदमत नहीं, बार बार चढ़ाई करने, कारकुनों को इम्तिहान में डालने और माहौल पर प्रोपेगेंडा करना जमहूरी रवैया हरगिज़ नहीं। मुल्क में इंतशार और तसादुम की फ़िज़ा से मुल्क के सियासी और माशी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर आइनी अक़दामात और इंसानी हुकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस पूरे खित्ते के अमन अमान को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक साजिशों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत ने हमसाया मुल्क में दहशतगर्दों की तरबियत के लिए मुतादिद ट्रेनिंग कैंप कायम किए। मेरे अजीज़ दोस्तों, भारत की मुसलसल मुदाखलत और जारहियत से आलमी कवानीन को रोंदा जा रहा है। मोदी सरकार की सफाकियत, जुल्म और जबर के फैसलों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियतों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। मोदी सरकार के कश्मीरियों के नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों का शर्मनाक किरदार खुल करके भारत की हिमायत का सबूत है। मोहतरम साथी हज़रात, नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन अमेरिका और इसराइल से वफादारी की सर्टिफिकेट लेने के लिए इसराइल के तस्लीम करने का एजेंडा उठाया। उनके अहमकाना सोच और मस्बत ज़हनियत मिल्लत और कौम और किबला अव्वल से गद्दारी के मुतरादिफ हैं। इसराइल के नरगे में फ़कत फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा को आने को है। शाम से लेकर के इराक तक और लीबिया से लेकर के अफ़गानिस्तान तक में होने वाले अमेरिकी की हर अस्करी कार्रवाई के असल मास्टरमाइंड इसराइली हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान को एहसास नहीं। मुल्की आइन साजी की तारीख में 18वीं तरमीम और आइनी तरमीम को एक संगमील की हैसियत हासिल है। इससे कबल किसी आइनी तरमीम में इतनी वसी और बुनियादी आइनी इस्लाहात और तरमीमात नहीं हुई थी और न उससे कबल छोटे सूबों को जायज़ हुकूक और वसाइल पर अख्तियारात दिए। 18वीं तरमीम के तहत मुत्तफ़िक़ा तौर पर सूबों को अख्तियारात दी गई हैं और वफाक को और सूबों के दरमियान पाए जाने वाले शुबूक शुबहात और खलीज ख़त्म हुई। कुछ कुव्वतें नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पे हैं। सूबों और मरकज़ के माबैन अख्तियारात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो तो सूबों के मसाइल हल हो सकती हैं और रुकावटें दूर होंगी। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद होने से सूबों में इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकते हैं। मेरे अजीज़ साथी हज़रात, माजी में वफाक के नज़रअंदाजियों से बलूचिस्तान 70 साल कबल बुनियादी सहूलियात से महरूम थी, आज तक महरूम है। आज पासमानदगी, गुर्बत, जहालत और इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से दुनिया की मुतासिर खित्तों में शुमार किया जा रहा है और कुदरती दौलत, साइल व वसाइल अमीर तरीन खिता होने के बावजूद यहाँ के आवाम दर पदर ठोकरें खा रही हैं। मादनियात, सेंधक और रिकॉर्डिक और ग्वादर के बावजूद बलूचिस्तान में अब तक न कोई मोटरवे बना, न कोई ऑरेंज ट्रेन दिया और अक्सर अजला आज तक बिजली, गैस और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से महरूम हैं। सीफेक से इस मुल्क की तकदीर उस वक्त तक बदल नहीं किया जा सकता जब तक मंसूबों में बलूचिस्तान को शामिल न किया जाए। इसमें शक नहीं कि किसी भी मुल्क के बुनियादी सुनती व समाजी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, बिजली की पैदावार या तालीम और इलाज की सहूलियात एक मस्बत इक़दाम होता है। लेकिन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत मगरबी रूट को तरजीहात में शामिल करने के बगैर दावों के बावजूद सीपेक के मगरबी रूट के अहम हिस्सों पर ताहाल काम शुरू नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं कि सीपेक जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है की हैसियत इंडस्ट्रियल जोन के क़ियाम से होगा, बलूचिस्तान को ज़्यादातर मनसूबों की इफादियत से महरूम रखा। मोहतरम साथी हज़रात, महंगाई, बेरोज़गारी से आवाम की चीखें निकल रही हैं। चीनी और आटा और ज़रूरियात ज़िंदगी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं।
मुल्क का हर तबका परेशान हाल नजर आ रहा है। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दाम करें, महरूमियों और बेरोजगारियों के खात्मे के वादों को अमली जामा पहनाया जाए। बलूचिस्तान में 70% आवाम का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। बिजली की लोड शेडिंग, ज़रूरी शोबे तबाही के दहाने पर हैं। हमेशा लोड शेडिंग की वजह से बागात और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हुकूमत पसमानदा सूबे की में ज़राअत के लिए इक़दाम उठाएं। शुक्रिया। वो बिल्कुल राबिते में हैं और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, इन चारों लोगों को हमने पहले से कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान वो हमेशा मफादात की सियासत करता है और वो हमेशा कारकुनों को नज़रअंदाज करता है। मैं आलमी सतह पे आपको बताता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक वक्त में ताल्लुक लीबिया से था। लीबिया की वो मुकम्मल हिमायत करता था, लेकिन जब लीबिया पे मुश्किल वक्त आया तो मौलाना फजल रहमान ने उसको छोड़ दिया है। फिर एक वक्त था जब तालिबान के साथ, जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में थी तो वो उनकी हिमायत कर रहा था। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि मेरे तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम आज से 10 साल कबल इन हजरात को कहा करते थे कि ये जमात अब मौलियों की जमात नहीं, ये गरीबों की जमात नहीं है, ये नजरियाती कारकुनों की जमात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मोरसी सियासत कर रहे हैं। अब उन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन जो है पार्लिमानी लीडर वो अपने बेटे को बनाया है, सेनेट में अपने भाई को भेजा है, सूबाई असम्बली में भी अपने भाई को भेजा है। वो अपने घर में सारे सीटें तकसीम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज मैं आपकी तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के उलमा को, अहले मदारिस को मैं ये दावत देता हूँ कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती में आ जाएं, जो गरीब कारकुनों की जमात हैं, जिसमें कारकुन का कदर होता है। मौलाना फजलुर रहमान के पास न किसी मौलवी का कदर है, न किसी आलिम का कदर है, अलबत्ता उन लोगों का कदर है जिनके पास माल है, दौलत है, पैसे हैं। मैं जो साथी हजरात देर से आए हैं, मैं मुख्तसरन उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं क्या मैं जो साथी देर से आए हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। साहबी देर से आए हैं, मैं बतौर खुलासा के सामने अर्ज करूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती जो 2008 से
मौलाना फजल रहमान की जमात से अलहदा हुई। हम इस बुनियाद पे मौलाना फजल रहमान से अलहदा हो गए कि मौलाना फजल रहमान ने करप्शन, झूठ और मोरिसी सियासत शुरू की। हम नजरियाती कारकुन हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम के असास और बुनियाद के लिए काम करते हैं। हम शेख हिंद के वारिस हैं, हम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वारिस हैं, हम सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के वारिस हैं। हम इस मुल्क में नजरियाती सियासत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को अपनी घर तक महदूद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान की सियासत में कारकुन का कोई कदर कीमत नहीं, बल्कि वो मफादात की सियासत कर रहे हैं। वो हुसूल इक़्तिदार के लिए अपनी तवानियाँ अपने कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देख लिया गुज़श्ता आज़ादी मार्च में उन्होंने 13 दिन और 5 दिन रास्ते में कारकुनों ने सफ़र करके वो इधर आए, और वो कहाँ पर बैठ करके कारकुनों को ठंडक में छोड़ करके उन्होंने वापसी का ऐलान किया और कह रहे थे कि मेरे साथ वादे किए गए, ये है वो। फिर जब कुछ नहीं बना, फिर उन्होंने पीडीएम के नाम से, ये वो सियासतदान है पीडीएम में, चाहे वो कौम परस्त हैं। अभी 2-3 कौम परस्त जमातें जो हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बार बार बलूचिस्तान में हुकूमत की, उनका गवर्नर रहा है, वजीर रहे हैं, दर्जनों वजीर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथियों ने भी लूटमार किया, बलूचिस्तान को गर्क कर दिया है, माशी तौर पे तबाह किया, और पख्तूनख्वा ने भी इस सूबे को गर्क कर दिया है। इसी तरीके से मुल्की सतह पे नवाज शरीफ ने और जरदारी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती समझती हैं कि जैसे नवाज शरीफ ने अपना मुद्दत पूरा किया है, जैसे जरदारी ने अपना मुद्दत पूरा किया, इससे ही इमरान खान जो है वो अपनी मुद्दत पर पूरा कर लें। 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान के अवाम वो देखेंगे कि इमरान खान ने अपने वादे का इफा किया है, पूरा किया है या नहीं किया है। कोई हक नहीं है इस मुल्क के सियासतदानों को कि वो तहरीक चला रहे हैं और इस मुल्क को बदअमनी में धकेल रहे हैं। हमारे अलहदा जमात हैं, जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती रजिस्टर्ड जमात है। हमारा इंतखाबी निशान तख्ती है, हमने इस पे 2 इलेक्शन भी लड़े हैं। हमारे मरकजी अमीर मौलाना खलील अहमद मुखलिस साबिक एमएनए हैं। पूरे काबिना है हमारे पूरे सूबे में, 6 सूबों में, इस्लामाबाद में, और हमारे इस्लामाबाद के अमीर और जनरल सेक्रेटरी आपके सामने बैठे हुए, कराची में, लाहौर में और बलूचिस्तान में हमारे इस साल 5 लाख मेंबर साजी हुई है। लिहाजा हम आपके तवज्जुह से पूरे मुल्क के उलमा और दीनदार तबके को दावत देते हैं कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती में शमूलियत अख्तियार करें। पहले इनका जवाब दे दूं। मौलाना शेरानी इकट्ठे उनके साथ वो सब कुछ कर रहे थे जो मौलाना फजल रहमान कर रहे थे। हमारे 3 बुनियादी नुक्ते थे। अपनी जमात के अंदर वो जो रफनसाजी कर रहे थे, उसमें वो जो है जेलसाजी कर रहे थे। गुज़श्ता 10 सालों से हम कह रहे हैं, पहले मौलाना शेरानी साहब जेलसाजी कर रहे थे, ये गुज़श्ता 3 साल में मौलाना फजल रहमान ने भी शुरू किया है। दोनों सिलेक्टेड रहे हैं, मौलाना शेरानी भी सिलेक्टेड अमीर था, मौलाना फजल रहमान भी सिलेक्टेड अमीर है। और हम मुसलसल काम कर रहे हैं अपने वसाइल के अंदर। हम गरीब लोग हैं, हम कारकुन हैं, हमारे पास न इतने वसाइल हैं, ना हम किसी के कहने पे उठे हैं। हमें अपने नजरियात ने हम पर ये दबाव डाला है कि आप उठें, इन करप्ट उलमा के खिलाफ आप तहरीक चलाएं। मैं पहले भी इस जगह पे 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, बिल्कुल राबिते में, लेकिन उनसे हमने कहा है कि वो तरीका यहाँ पर नहीं अपनाना जो आप पहले से थे। नजरियाती कारकुन की हैसियत से
गरीब लोगों की तर्जमानी करते हुए आपने यहाँ पर काम करना है अगर आना है हमारी जमात में। हमारे साथ हमने 5 लाख मेंबर साजी की है पूरे पाकिस्तान में। अभी हमारा मेंबर साजी मुकम्मल, मैं मरकजी कन्वीनर की हैसियत से आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, 5 लाख मेंबर साजी हमारे हुई है पाकिस्तान में। 2008 में हमारा एक कौमी असम्बली का मेंबर बना और एक सूबाई असम्बली का मेंबर बना, और गुज़श्ता